जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਗਿਰਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਧੱਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਸਿਖਾਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਖਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਟ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ 10% ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਿਰਕਲਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी प्लीज़ मेरा ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। हमारे परिवार से कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कितने प्यारा प्यारा मैसेज आते हैं। संगत जी, मेरा आधा दिन काम काज करके, घर का काम काज करके, और आधा दिन सत्संग सुन के ही कट जाते हैं। गुरबाणी भी सुनते हो। जितना दिन जा रहा है गुरु जी के कनेक्शन होने के बाद, तब मौन सिर्फ गुरु जी होते हैं। गुरु जी की संगत के साथ, कभी कई संगत के साथ इंट्रोड्यूस हो तो बहुत अच्छा लगता है हमारे परिवार के लोग हैं। गुरु जी मैसेज देते हैं, बेटी हर वक्त क्यों परेशानी में रहती है, मैं हूं ना, मेरा अदृश्य शक्ति तेरे को हमेशा रक्षा करती है, जा ऐश कर। कितनी प्यारा मैसेज, कितनी अच्छी लगती है सुन के। मेरा अपना कोई है, ये लगते हैं सब अपने हैं। अपने होते हुए भी गुरु जी की तरह कोई प्यार नहीं कर सकता। इसलिए मैं थोड़ा निडर हो गया हूँ। हर वक्त लगता है गुरु जी तो है, कुछ ना कुछ गुरु जी करेंगे। गुरु जी सत्संग सुना के हमारे कष्ट काटते हैं, बीमारी काट देते हैं, सावधान कर देते हैं। कभी कहते हैं तेरे पेट में गांठ दिख रही है, सत्संग सुन, कष्ट काटा। तो सचमुच पेट की बीमारी बहुत चला है। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की जल प्रसाद से मैं बहुत ठीक हूँ। पहले मैं संगत जी लोटा भर के जल तो मैं रखती हूँ गुरु जी के सामने, लेकिन ये जल पीती तो हूँ सुबह खाली पेट में, फिर कुछ थोड़ा सा वहाँ से मैं नहाने के लिए भी रखती हूँ,
और जो बात जाती थी तो मैं पीती थी, लेकिन गुरुजी हमेशा यही कहते थे मेरा जल प्रसाद से दवाई लेना। तो मैं कभी-कभी लेती थी, कभी-कभी भूल जाती थी। तो कुछ दिन पहले गुरुजी मैसेज दिया, मूर्ख मत बन बेटी, मेरा जल प्रसाद के मजाक मत सोच। लोटा ब्लेस करके, बड़ा मंदिर से लोटा ब्लेस करके ला, जिसको परेशानी है उसी के नाम से ला। इसके बाद रात को मेरे सर के सामने लोटा भर के जल रख, और सुबह आधा पानी पी ले और आधा नहाने के लिए रख। तो मैं आधा तो पीती हूँ सुबह, लेकिन उसमें कुछ बचा के भी रखती हूँ दवाई खाने के लिए। तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो गुरुजी कभी ये मैसेज भी देते हैं, बेटी तेरे को झाइया फेस में आ गया, तू चंदन, जल मेरा जल प्रसाद, मुल्तानी मिट्टी, दही, बादाम तेल और नीम तेल मिला के पेस्ट बना और लगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं वो भी करती हूँ संगत जी, सचमुच फ़र्क आया। आँख की रोशनी के लिए भी बताया, जो जल प्रसाद से आँख धो। जो जो मेरे को चाहिए होता है सारे मैसेज आते हैं। और एक मैसेज आया, मेरा एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है, अर्जुन छाल के सहित लौंग और दालचीनी मिला के चाय पी ले, परिवार के लोगों को भी पिला। गुरुजी मैसेज दे के हमारी बीमारी दूर कर देते हैं। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। आप इतने प्यार करते हो, इतने सोचते हो। सचमुच गुरुजी, आई लव यू, लव यू गुरुजी, लव यू। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आज मैं यहाँ पे मेरा वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग तैयार करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ रही हूँ। गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा की कृपा पल पल बरसती है, पल पल बरसती है संगत जी। गुरुपा का एक लौकिक स्वरूप मुझे मिला था। यही सत्संग में जब मैं जाती थी तो आंटी जी ने मुझे पहली बार जब सत्संग में गई थी तो मुझे दी थी। मैं बहुत खुश हुई थी। उस लॉकेट स्वरूप को मैंने अपने सोचा था कि अंकल जी पे इतनी आफत विपत्ति आती है, हमेशा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है अक्सर, लेकिन गुरुपा की अथाह कृपा है कि सॉरी संगत जी, मैंने गुरुपा का गुरु मंत्र का जाप नहीं किया। कृपया मैं ये जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं बता रही थी कि वो लॉकेट स्वरूप के बारे में कि मुझे पहली बार मिला था, मैं कितनी खुश थी। और उस लॉकेट स्वरूप को मैंने सोचा मैं अपने अंकल जी को दे दूँ, क्योंकि उन्हें गाड़ी से काफ़ी बार एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन हर बार गुरुपा ने बचा लिया है। तो इसका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। तो वो मेरे अंकल जी
लेके लॉकेट स्वरूप को अपने पास रखते थे। जब मैं कितनी बार मैंने कहा भी कि आप इसे पहन लो ताकि वो इधर-उधर ना हो। वो बोलते थे मैं अच्छा से अपने अंदर वाले जेब में रखता हूँ, यहाँ से कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और ऐसे करके संगत जी वो हमेशा अपने साथ रखते थे उसे। और ये हुआ संगत जी कि वो लॉकेट स्वरूप एक दिन मैं तो पूछी भी उनसे कि आप ले गुरुजी को लेके चल रहे हो ना? हम लोग बाहर गए थे, तो वही बैंक वगैरह गए थे, तो वहाँ से जब आए उसके बाद दूसरे दिन वो बोलते हैं कि मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं है प्रीति। तो मैं तो सुन के ये घबरा भी गई कि ऐसे कैसे लॉकेट स्वरूप कहाँ चला गया। मैं इतनी मायूस हुई संगत जी उस दिन। मैंने पूरा दिन मैं मायूस रही अपने गुरुपा के बारे में सोच सोच के। गुरुपा कहाँ चले गए, हमसे कुछ गलती हुई, कुछ गुनाह हुआ जो गुरुपा हमें इस तरह छोड़ के चले गए। तो कहाँ है पर ना, मैं ढूंढने की कोशिश क्या करती संगत जी, क्योंकि वो जेब में रहता था तो मुझे लगा जेब से कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता है, या तो कहीं बाहर गिर गया होगा, कहीं दूसरे के पास चला गया होगा। ऐसे ही मैं सोच के फिर मैं छोड़ दी। और संगत जी ये हुआ कि वो लॉकेट स्वरूप गुम ही हो गया। तो गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा। मैं बाद में यही सोची कि गुरुपा सत्संग में सुनवाते हैं कि कोई बहुत बड़ा कष्ट रहता है वो अपने ऊपर लेके चले जाते हैं। तो शायद यही बात हो, तो मुझे नहीं पता संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी कष्ट विपदा जो आप अपने ऊपर लेते हैं। गुरुपा के प्रत्येक मैसेज जब ऐसे आते हैं, आज से तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, अब तेरे बुरे दिन खत्म हो गए हैं, तो गुरुपा इसका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, एक भी मैसेजेस में जल्दी अटेंड नहीं कर पाते। बहुत सारे सत्संग आते जो मुझे नहीं अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि इधर मेरे बेटे का पेपर चल रहा है बोर्ड का। तो मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ, जो भी कष्ट वो कटवाना चाहते वो कट नहीं पाते होंगे, क्योंकि इधर मैं लगातार बीमार रह रही हूँ। हमेशा फीवर 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 अंदर अंदर मुझे रह रहा है। गुरुपा ने सत्संग सुनवाया एक कि अंदर अंदर एक अंकल जी थे, उनको फीवर रह रहा था, और फिर उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पीलिया हो गया। मैं भी कल डर गई थी सुन के। फिर मुझे लगा गुरुपा ने जब सुनवाया तो उन्होंने हमारा कष्ट काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की महरी किस कदर बरसती है कि आज मॉर्निंग में, आज महाशिवरात्रि है, गुरुपा का महापर्व है। तो गुरुपा कहते हैं एक मैसेज में मुझे ये फ्लैश हुआ कि आज के दिन तो मेरा दिन है, तो इस दिन एंजॉय किया कर, हाँ सेलिब्रेट किया कर। और इस दिन व्रत रखने की का लोड है। तो गुरुपा के ये मैसेज सुन के मैंने बहुत कस के हंसे भी कि मैं व्रत तो हर साल रखती हूँ, तो मैंने रखा भी है। तो मैं क्या करूँ अब, कैसे ना रखूँ गुरुपा के ऐसे मैसेजेस को देख के। फिर भी मैं रखी हूँ संगत जी, लेकिन खुश बहुत हूँ कि मेरे गुरुपा की आज इतने बड़े दिन हैं। इस दिन को हमेशा हमेशा सभी लोग याद रखते हैं और बहुत प्यार से मनाते हैं। ये दिन मेरे जीवन में भी बहुत मायने रखता है संगत जी, क्योंकि पहला शिवरात्रि जब मैंने करी थी, रखी थी व्रत, उसके उसके दूसरे शिवरात्रि आते थे मेरी शादी हो गई थी। तो संगत जी मुझे ऐसा ही याद है संगत जी कि तो मुझे हम मैं तब से कभी शिवरात्रि के दिन मतलब व्रत नहीं छोड़ी हूँ किसी भी कारण से। जो मैं पूजा करने का भी अभी जैसे संगत जी नहीं था, फिर भी मैं व्रत नहीं छोड़ी। आज गुरुपा ने कहा था कि आज तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, तो गुरुपा आपने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कि संगत जी ऐसी बात है कि मैं आज तो मंदिर नहीं गई। प्लस मैं सोच रही थी कि मेरे घर में कोई तो मंदिर नहीं जाएगा, क्योंकि अंकल जी की ड्यूटी वो तो चले गए और दोनों बच्चे ही हैं, और दोनों बच्चे कभी अकेले कभी मंदिर गए नहीं हैं। तो कौन जाके पूजा करेगा शिव जी को, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आएगा। मन में थोड़ी ये बात हमेशा की थी।
तो ऐसा हुआ संगत जी, आज मॉर्निंग क्या, कल से ही मेरा बेटा बोल रहा है कि मुझे उठ के पूजा करने जाना है। मैं सोच में पड़ी, ये ऐसे ही बोल रहा है, ये जाएगा हुआ नहीं। लेकिन संगत जी ऐसी हुई कि आज वो जिस कदर मैं थाल सजा के अच्छी तरह से ले जाती थी पूजा करने के लिए बिल्कुल उस तरह नहा धोआ के तैयार होके अच्छा से सब चीज करके जोत बाती लेके सब कुछ करके वो चला गया मंदिर। मैं ये बात जब मैं देखी तो मैं इतनी खुश हुई अंदर से कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि मेरे बच्चे को ये बुद्धि ज्ञान दिया आपने। दोनों बच्चे गए संगत जी, तो मैं मेरी बेटी तो मॉर्निंग में खा भी ली थी, उसके बाद नहाई, उसके बाद गई। तो मैंने गुरुपा के वैसे सारे मैसेजेस वगैरह सब मैं देखती हूँ, तो मैं जानती हूँ गुरुपा का ऐसे कोई नियम नहीं है कि आप खा के ना करें। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई नियम धर्म रखा है। तो मैं मन से गुरुपा की पूजा करनी सबसे ज़्यादा अनिवार्य होती है। मन अगर गुरुपा के चरणों में हो तो गुरुपा उसे स्वीकार करते हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरे बच्चों की पूजा स्वीकार करना गुरुपा। वो नहीं जानते कि पूजा कैसी होती है। वो बारंबार मुझसे पूछ रहे थे, मम्मी मैं जाके कैसे कैसे करूँगा। मैंने उसे मुझे जो बुद्धि ज्ञान रहा मैंने वैसे बताया गुरुपा, कृपया पूजा को स्वीकार करना। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुपा ने जब गुरुपा का जब वो मैसेज फ्लैश हुआ कि आज मेरा दिन है तो आज सेलिब्रेट किया कर, मैंने ये बातें अपनी बच्चों से बोल दी। अब मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ गई कि अब तो गुरुजी का सेलिब्रेट करने का दिन है, तो चलो कहीं सेलिब्रेट करने के लिए। अब ऐसा हुआ मैं क्या करती, क्योंकि घर में मैं अकेली थी, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो टीवी चलाते हैं, टीवी देखते हैं। और उसमें गाना वगैरह लगा दी, वो गाई, डांस वगैरह करी, इंजॉय तो करी ही। और मैंने उससे कहा भी था तुझे जो भी कपड़े पहनने जो पसंद है वो पहन ले, मैं आज कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि आज मेरे गुरुजी का दिन है। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, ये खुशी भरे दिन देने का गुरु पाक के शुक्राना करने की मैं क्या कहूँ सिवा। मैं ये छोटे से शब्द गुरु पाक के शुक्राने मैं कैसे कर पाऊँ उस जीवा से संगत जी। गुरु पाक के बहुत उपकार हैं। मेरे अंकल जी आज बता रहे हैं उनका शुक्राना सत्संग है ये कि कंपनी में वो जिस कंपनी में काम करते हैं कुछ ना कुछ बात के लिए उन्हें ऐसे ही फंसाया ही जाता है लगभग, और गुरुपा उन्हें बार बार बाहर निकाल लेते हैं। वही आज मुझसे बोल रहे हैं कि गुरुजी का नाम लेके मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हर बार उनके अंग संग रहते हैं और उन्हें हर विपदा से निकाल ही लेते हैं। संगत जी गुरुपा की मेहर इतनी है कि मेरे अंकल जी कह रहे थे इधर सैलरी मुझे 1,000 ज़्यादा आ रही है, पता नहीं कैसे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो बार बार बोल रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि उनकी सैलरी बढ़ गई है। तो वो जब जाके पूछे तो मुझे आके बताएं। तो गुरुपा का मैं लख लख शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि गुरुपा ने कितनी बार मैसेज दिया था कि तेरे तेरे अब पैसों की तंगी कम होगी। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हर बार दिक्कत बनी ही रहती थी पर गुरु पाक की जब मेहर होती है सब सही हो जाता है संगत जी। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ना रहे गुरु पाक के। मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझे बहुत धन दौलत में डुबो दो गुरु पाक, ऐसा कुछ भी नहीं, बस सारी कुछ पूर्ति होते जाए और क्या, घर में सुख शांति से सब रहे, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और जो आए जाए उसकी भी सेवा सत्कार मैं कर सकूं, इतना देना मेरे दीनानाथ महादेव। मेरे गुरु पा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। घर में सुख शांति देना, मन की शांति देना, इससे ज़्यादा और क्या चाहो भगवान। कहते हैं गुरुपा जो भी मांग तुझे 100% मिलेगा। तो गुरुपा मांगना क्या है, आपके चरणों की दास बना के हमेशा अपने चरणों नाल रख लो गुरुपा, और कभी ऐसा ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं। तो गुरुपा मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ जो आपने मेरे मुझे अपने से जोड़ा। ये अहो भाग्य मेरे
कितनी मैं कभी-कभी सोचती हूँ संगत जी मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, जो गुरुपा ने की मेहर मुझ पे हुई और गुरुपा ने मेरा हाथ खुद ही पकड़ा। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। जब भी चाहो गुरुपा के नज़दीक लगता है कि गुरुपा ने खुद ही रख रखा है अपने नज़दीक। संगत जी ऐसी बात है, मॉर्निंग में आज मैं उठी, ऐसे ही मैं अपने बेटे के पास बोलते-बोलते ऐसे ही गेट के तक गई। मैं मन में ऐसे ही बोली कि क्या आज गुरुपा मुझे दर्शन देंगे? आज महाशिवरात्रि है। ऐसे ही मैंने इतना ही बोला और गुरुपा ने दर्शन दे दिया। संगत जी इतने प्यारे से ब्लेसिंग दी। कहते ब्लेसिंग शेयर नहीं करते, लेकिन ये खुशी है जो मन को इतना खुश कर देती है। इतनी अच्छी छोटी-सी तितली के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए, तो गुरुपा लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ कि ब्लेसिंग ऐसे में कट जाते हैं या रहते हैं, पर मैं इतना जानती हूँ, किसी चीज़ को भी देने से कोई चीज़ कभी कम नहीं होता। ये मैंने अक्सर बचपन से सुनते आई हूँ। मम्मी कहती है, मेरी माँ भी कहती थी कि दान करने से कभी घटता नहीं, और ये दान नहीं है संगत जी। फिर भी मुझे लगता है कि गुरुपा के इतने अच्छे-अच्छे बच्चे सारे संगत हैं। यहाँ ब्लेसिंग अगर हम बोल भी देते हैं तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा कि गुरुपा की ब्लेसिंग चली जाएगी और सबों में बिखर जाती होगी। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की मेहर सब पे बरसे, वो उन आंटी पे भी बरसे जो हमारे सत्संग को तुरंत शेयर कर देती हैं। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे बनाए रखना गुरुपा। इस जगत में बहुत सारे प्राणी हैं गुरुपा जिनको आपकी अथाह ज़रूरत है। कृपया सब पे अपनी मेहर बरपाएं। और मैं क्या कहूँ संगत जी, मुझे कुछ अब समझ नहीं आ रहा, तो गुरुपा लख-लख शुक्राना। अगले शुक्राना में मैं फिर लौटूंगी और मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। आप सब भी हमारे साथ करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, इतने बड़े दिन हमारे जीवन में लाने का शुक्राना। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बुधवार है, आज महाशिवरात्रि है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ महाशिवरात्रि दी लाख लाख बधाइयाँ। आज बुधवार गणपति जी का दिन है। सबके विघ्न दूर करें गणपति बप्पा। और गुरु जी सब घर में खूब खुशियाँ आए। सारी संगत ਨੂੰ लाख लाख बधाइयाँ। गुरुपा आपको भी महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। सबको ढेरों ब्लेसिंग दो, सबके घरों में खुशियाँ आए, धन धान्य से सुख समृद्धि और आए सबके घर में। गुरुपा अपनी कृपा रहमत बरसाते रहना। सबके बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, सब सफलता की ओर चलें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, किसी पे कोई भी दुख कष्ट न आए, सबको हेल्थ देना। गुरु जी कहते हैं हुन तेरा बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तू कुछ भी मांग ले बेटा गुरुपा। मुझे आपका ही जन्म जन्म का साथ चाहिए। अमृत वेला से सिमरन भक्ति की दात दो गुरुपा। मुझे अपने चरणों में ही रखना। मेरी आत्मा की शुद्धि करो ना अपना, ताकि शुक्राना हो। फिर कर आपकी भक्ति के लिए शक्ति भी आप ही दोगे गुरु। मुझे निरोगी काया, सारी संगत के निरोगी काया दो। गुरुपा कह रहे हैं पुत्र, आज आज तेरे दुख की आखिरी रात है। कल से नया सवेरा तेरे जीवन में
ये बहुत खुशियाँ आएंगी। ऐश कर कल्याण की ता जिस घर में गुरु जी का नाम लिया जाता है, उस घर में समस्या ज्यादा दिन नहीं ठहरती है। मंत्र जाप किया कर, जिस घर में होता रहता है उस घर में गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। और हम और गुरु जी हमेशा रहते हैं उस घर में। मंत्र जाप हमेशा जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पुत्र, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, सब मतलब के हैं। इसे सिर्फ सच समझना। यहाँ सिर्फ मतलब के ही रिश्ते हैं। मतलब निकल जाता है तो सब अलग हो जाते हैं। पुत्र, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि सब पे विश्वास मत किया करना। वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पर विश्वास रख। वो गुरु जी बोल रहे हैं, मंत्र जाप करती रहे। बाबा जी ने जिस पर भी डाली छाया, वो रात उसकी किस्मत ही पलट गई। और वो सब मिलगा जो तुमने बिना मांगे ही दे दिया। जो कब बिन मांगे ही जो कभी किसी ने नहीं पाया। शिवरात्रि की का सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा कहते हैं, पुत्र, बोला था ना कि रोना नहीं है, क्यों दूसरों के लिए अपने आंसू बहाती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। बस धैर्य रखो, अब मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तुम्हारा कठिन समय भी निकल जाएगा, तुम्हारा दुख भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम कभी भी अपने गुरु से नाराज नहीं होना, दूर मत जाना। क्योंकि तुम अपने अहंकार और क्रोध से भूल जाते हो कि जिसने तुम्हारे दुख काटे हैं वो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान हैं। उन्होंने तुम्हें सुख देकर तुम्हारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। वही एकमात्र हैं ऐसे हैं जो हर दुख परेशानी से बचा लेते हैं। इसलिए पुत्र, उनका शुक्राना हर पल, हर वेले, हर सांस में करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मुझे माफ कर देना गुरुपा, मैंने आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी, मुझे माफ कर दो गुरुपा। मेरी सोच को पॉजिटिव रखो गुरुपा, मुझे माफ कर दो। मेरी सारी खबर है। गुरुपा कहते हैं, मुझे तेरी सारी खबर है। मैं सब ठीक करूँगा। अपने गुरु पर विश्वास रख, शुक्राना कर, कल्याण कीता। गुरु जी, मुझे आप पर विश्वास है। मैं अपने परिवार की बागडोर अपने आपके हाथ में है गुरुपा। जो आपने अपने निमाणे बच्चों को माफ कर दो गुरुपा। कहते हैं, सपने बड़े देखना शुरू कर दे, अगे वध, तेरी तरक्की होने वाली है। तेरे नाल मैं, हाँ, कामयाबी मिलेगी। चल शुक्राना कर, ऐश कर। बस ध्यान रखी, सिमरन शुक्राना दिल नाल करी। असहाया दी सहायता दे कदी ना छड्डी पुत्र। जी गुरु जी, मैं हमेशा असहायों की सहायता मदद करती रहूंगी गुरुपा। कोई भी सेवा से मैं पीछे नहीं हटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं साथ संगत एक एक कुछ कहना चाहती हूँ गुरुपा कि आज सुबह जब मैं 4 बजे उठ कर मैं अपना आज मैंने गुरुपा की जोत जलाई। तो गुरुपा की जोत जलाई और मैं पूजा करने के लिए बैठी। तो मैंने सुखमनी का पाठ चलाने के लिए टीवी को स्विच ऑन किया। तो स्विच ऑन किया तो तो वो स्पार्किंग हो रही थी, इसलिए वो चला नहीं। लेकिन चला नहीं तो फिर मैंने फिर उधर ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। पूजा करते करते मैंने ऐसे मन में आया कि अगर गुरुपा आप यहीं हैं तो और ये लाइट और गुरुपा के आसपास लाइटिंग करी हुई है और उसी में ही वही स्विच टीवी का है।
भी ये अपना ऑन हो जाए। और मैं फिर अपनी पूजा में लग गई, वो एकदम से ऑन हो गया। मैंने कहा, मैं एकदम से चकित रह गई कि गुरपा, मैंने तो अभी आपसे ही बोला था कि अगर आप यहाँ हैं तो आप ये टीवी ऑन और लाइटिंग ऑन हो जाए। वो एकदम से ऑन हो गई। शुक्राना गुरपा, आप इतनी जल्दी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शाम को भी मैंने जोत जलाई। मैं हमेशा शाम को जलाती हूँ। आज महाशिवरात्रि थी इसलिए मैंने सुबह भी जलाई थी। और मैंने शाम को जब जोत जलाई तो मैंने बिस्किट और हलवा प्रसाद बनाया भोग लगाने के लिए। और फिर हमने पूजा जब हो गई, हमने आरती करी शिव जी की, तो बिस्किट का पैकेट जो है वो खुला हुआ था। उसमें से 4 बिस्किट गुरपा ने खाए। मैं शुक्राना, गुरपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और अपना भोग लगाया। हम धन्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। गुरपा कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरपा। हमारे गलतियों को, हमारे गुनाहों को बख्शो, बख्शनान बख्शो। अगर कोई हमसे बोलने में, सत्संग बोलने में कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा करना गुरपा, क्षमा करना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु रूप संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज सोमवार का दिन है, गुरुवार है, गुरु जी महाराज का ही वार है। तो गुरु जी ने मुझे ये सत्संग फ्लैश आउट किया कि इस महाशिवरात्रि पर जो एम्पायर स्टेट में एक सच्ची घटना हुई थी, एक आंटी को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, और गुरुजी की मेहंदी, मतलब कि महाशिव की मेहंदी रस्म इस शिवरात्रि पे। तो ये मैसेज फ्लैश आउट मुझे गुरुजी महाराज ने किया, तो मैं आप जी से शेयर कर रहा हूँ। और गुरुजी ने बोला कि तेरी जिंदगी में अब चमत्कार होने वाला है, और ऐसा चमत्कार होगा कि दुनिया देखेगी। अब तेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे, ना कि गमी के। और गुरुजी ने यह भी बोला कि 90% तो मैंने तेरे कष्ट काट दिए हैं, और 10% जो बचे हैं वो जो मैंने तेरी परीक्षा ली है उसमें काट दिए। तू परीक्षा में पूरी तरह से पास हो चुकी है, पूरे नंबरों से। तूने अपनी परीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो तुझे वो सब मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी जिंदगी अब खुशियों से भर दूंगा, तेरे कदमों में फूलों की बरसात कर दूंगा, तेरी झोली बहुत जल्द खुशियों से भर दूंगा। विश्वास रख, बस थोड़ी ही देर की बात है। तेरे ये 10% जो दुख थे वो परीक्षा में ही कट गए। वो जो तूने परीक्षा दी है वही 10% दुख थे जो तेरे में काट रहा था। तो संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग
को तो हम कभी जांच भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। ये गुरुजी की ही अपनी प्लानिंग होती है। तो जैसे गुरुजी ठीक समझते हैं वैसे ही करते हैं। जो हमारे लिए ठीक है वही गुरुजी हमें बख्शते हैं, हमें देते हैं। क्योंकि हम तो मंगते हैं, दर दर मंगते हैं, उनसे मांगते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सही होता है और ठीक होता है वही गुरुजी हमें देते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने यही मुझे मैसेज आज फ्लैश आउट की है। तो ये मुझे हमेशा गुरुजी बोलते हैं, आज भी स्वरूप था गुरुजी का कि जिसमें गुरुजी ने त्रिशूल में डमरू बांधा हुआ है। और मुझे गुरुजी ने ये काफ़ी दफ़ा मैसेज दिया है कि मेरा डमरू बहुत जल्द बजने वाला है। तो संगत जी मैंने पुरानी संगत से सुना था कि डमरू का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य गुरुजी बदलने वाले हैं और तुम्हें वो सब देने वाले हैं जिसके तुम हकदार हो। वो सब खुशियां, वो सब कामयाबियां और वो सब चढ़ती कला सब गुरुजी आपको बख्शने वाले हैं। तभी गुरुजी का डमरू बजता है। और ये बहुत किस्मत वालों को ये मैसेज गुरुजी फ्लैश आउट करते हैं, क्योंकि ये डमरू सबके लिए नहीं बजता। कोई कोई संगत होती है जिसकी किस्मत में ये सब लिखा होता है, गुरुजी महाराज ये सब करिश्मा, ये सब चमत्कार करते हैं। डमरू बजना कोई मामूली या आसान बात नहीं है संगत जी। ये बड़ी मुश्किल से ये मौका मिलता है हमें। तो डमरू बजना इसका मतलब ये है कि हमारी किस्मत के कवाड़, दरवाजे खुल चुके हैं। जो हमारे कष्ट, क्लेश, रोग थे वो सब मिट चुके हैं और अब आगे खुशियां ही खुशियां हैं हमारी जिंदगी में। और गुरुजी की कृपा, गुरुजी का अपार आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और जो 10% हम नहीं झेल सकते ना हमारे लिए दुख, वो भले झेलना भी बड़ा नामुमकिन सा होता है, मुश्किल होता है, तो वो भी हमारे कट जाते हैं, गुरुजी काट देते हैं और पूरी तरह से हमें स्वस्थ तंदुरुस्त कर देते हैं। और चमत्कार ही चमत्कार हमारी जिंदगी में होने लगते हैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी महाराज तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो महाशिवरात्रि आ रही है गुरुजी महाराज, तो सत्संग तो जरूरी है, महाशिवरात्रि पे तो होते ही हैं। तो मैं आपसे यही अरदास, यही बेनती करता हूँ, जैसे आप जी ठीक समझो मुझे सत्संग में जरूर भेजना गुरुजी महाराज, जरूर भेजना, जैसे आप ठीक समझो, मैं कुछ नहीं बोलता। तो हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए इस महाशिवरात्रि पे ऊपर। और जैसे आप जी ने मुझे अपनी संगत बनाया वैसे हमारे पूरे परिवार को भी अपनी संगत बनाए, अपने चरणों में जोड़िए, अपने चरणों में लगाइए और ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप जी तो सदा विराजमान है हमारे घर में, जैसे आप जी ने बताया है। और सदा आप जी का रक्षा कवच यानी कि सत्संग का पहरा, लक्ष्मण रेखा आप जी ने हमारे ऊपर लगा रखी है। और आप जी ने यह भी बोला है कि मैंने बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज, ये 3-4 दिन से बच्चे भी ठीक नहीं थे,
सबको कोई ना कोई बीमारी थी, किसी को बुखार, किसी को खांसी, किसी को गला दर्द, बस सब ऐसे लगा हुआ था। और वो जो दुश्मन है हमारी गुरु जी महाराज, वो अपने इरादों से बाज नहीं आती और वो दोनों औरतें लगी हुई हैं, फिर से वो अपने खेल खेल रही हैं। तो मैंने सब कुछ आप जी के ऊपर छोड़ दिया है। आप जी ने ही बोला है कि उनको मैं खुद देख लूँगा, उनका कोई भी इरादा मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। तो गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम लाख लाख शुक्राना आप जी का, जो आप सदा हमारी रक्षा करते हैं। वरना हम किस काबिल हैं, हम तो पापी हैं, भूलनहार हैं, भटकनहार कलयुगी जीव हैं। और सुबह मुझे गुरु जी महाराज अमृत वेले उठवा दीजिएगा। और जैसे आप जानते हो कि मैंने अरदास आप जी के आगे लगाई है कि मैं सुबह गुरुद्वारे जाऊंगा, माथा टेकूंगा और अरदास में शामिल होऊंगा। कृपा कीजिएगा मेरे ऊपर कि मैं लेट ना हूँ और पूरे टाइम पर गुरुद्वारे पहुँच जाऊँ और अरदास में शामिल हो जाऊँ। तो ये सत्संग में संगत जी से बाद में शेयर करूँगा जब आप जी की आज्ञा होगी गुरु जी महाराज। तो आज का दिन आप जी ने सुख और शांति के साथ व्यतीत करवाया गुरु जी महाराज। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग बीच में क्यों गंदे काम करते हैं, फिर अपने बुरे इरादों की तरफ आ जाते हैं। और गुरु जी महाराज, मुझे कभी पेट में दर्द होता है, कभी साइड में दर्द होता है, कभी पीठ में। तो अब मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, पूरा यकीन है और मैंने आपको पूरा सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल ठीक कीजिएगा, मेरी सारी दवाइयाँ ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए, और मेरे सारे रोग, कष्ट, क्लेश, ये ब्लैक मैजिक, ये काला जादू, ये क्रियाएं सब ख़त्म कीजिए और दे आरोग्यता, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शिए। हमारे सारे परिवार को तंदुरुस्ती, सेहत बख्शिए। अपनी कृपा सदा हमारे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा गुरु जी महाराज। और इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करता हूँ। सत्संग करते हुए अगर कोई भूल गलती होगी है तो मुझे बख्श दीजिएगा, और आगे भी मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आप जी के साथ शेयर करूँ। जो आंटी जी हमारा शुक्राना शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनके पूरे परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा। और आंटी जी, आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे जो पेंडिंग सत्संग है वो आप अपने चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। तो संगत जी, सारे सरबत का भला कीजिए गुरु जी महाराज, सब संगत का कल्याण कीजिए, सबके ऊपर मेहर कृपा रहमत कीजिए, सबको देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए, सबके अंग संग सहाय रहिएगा गुरु जी महाराज। और इसी के साथ मैं अपने ये इस शुक्राना सत्संग का यहीं पे विराम करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और सुबह मुझे आप पूरे 6 बजे गुरु जी महाराज गुरुद्वारे भेज दीजिएगा ताकि मैं अरदास में शामिल हो जाऊं। तो इसी के साथ मैं अपना इस शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जय महाराज। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं बैरक पश्चिम बंगाल ਤੋਂ बोल रही ਹਾਂ। मैं गुरु जी ਨੂੰ अगस्त 2025 ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। 19 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਪਾਉਣ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, आप जो विश्वास नहीं करोगे, 10-15 मिनट उन्होंने 2 टीके लगा के वापस घर भेज दिया, जबकि उसकी हालत बड़ी खराब थी। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਪੀ ਲਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ 2 ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸਮੈਲ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਧੂਮੱਖੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾनो, आप सब जानते हो। गुरु जी कृपा करो, अपनी बच्ची की भी कृपा करो, फिर करो सर्व दा भला करो गुरु जी। अगर मेरा शुकराना राज जी डिवाइन ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।